Students, we have been discussing consumers equilibrium, and in previous class we discussed that consumers equilibrium in one commodity case. We have seen that what was the condition of consumers equilibrium in one commodity case, and with the help of table graph we discussed that the meaning of marginal utility of money we discussed. Now we are going to discuss consumers equilibrium in case of two commodities. So here it is supposed that a consumer will spend his entire income in buying of two commodities instead of one commodity. तो पिछला में देखें कि वन commodity X पे जो है वो खर्च कर रहा था, उसी को कंज्यूम कर रहा था, उसी से उसको सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है वो दो कमोडिटीज़ पे खर्च करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द परचेजिंग ऑफ और consumption of two commodities, in that case how a consumer can get maximum satisfaction, or in another language we can say that in that case how a consumer can be in equilibrium. So that we are going to discuss. Now let us start. Law of diminishing marginal utility applies in case of either one commodity or more than one commodity. So here the law of diminishing marginal utility will be applicable. What does it mean? It means that as successive units of consumption increases, means as the consumption increases unit wise, the marginal utility of the consumption of the goods decreases. It means marginal utility of goods decreases as more and more is consumed, more and more unit is consumed. So that law is applicable in case of two commodities case also. So in such a situation, law of equi-marginal utility helps in optimum allocation of his income. So we should know one thing, that consumers equilibrium in case of two commodities, sometimes also known as law of equi-marginal utility. तो इसका आपको पढ़ने से ही इसका मीनिंग आप जो है जान सकते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मीन्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इसमें मार्जिनल इक्वलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो किसका किसका इक्वल है? तो जितना भी गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है उसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा, और उस केस में जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आएगा। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका जस्ट मीनिंग आपको हम बताएं कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो जो ऑप्टिमम एलोकेशन है, जो बेस्ट एलोकेशन है, ठीक है, मनी का फॉर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। Law of equi-marginal utility also known as law of substitution, law of maximum satisfaction, Gaussian's second law, Gaussian's first law हम लोग पढ़ चुके हैं, ये Gaussian's second law इसको बोल सकते हैं। All the assumptions of DMU are applied in this case also. Now आपको ये भी याद रखना है कि जो भी assumptions हम लोग law of diminishing marginal utility में हम लोग देखे थे, वो सभी एजम्पशंस इस केस में भी अप्लाई होगा। यानी कि जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस और इन टू कमोडिटी केसेस, तो उस समय आप जो एजम्पशंस लिखेंगे तो एजम्पशंस आप सेम लिखेंगे। ठीक है, जो एजम्पशंस आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखे थे, डिस्कस किए थे, उसी को लिखना है इसमें भी। According to the law of equi-marginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increases. तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केसेस, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, वो ये कहता है कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। यानी कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जब दोनों गुड्स का इक्वल होगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पे दो गुड्स को यूज किया जा रहा है, तो जब दोनों गुड्स जो, और जो सेकेंड चीज़ जो वो है कि ये जो है आपको रेशियो जो ये फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, 1 मिनट, ये सेकेंड जो है आपको कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होगा। तो ये हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार हम लोग जो है इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। सो इट मीन देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो आप इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो है क्या कह रहा है, ये जो लाइन अभी हम लोग यहाँ देखें ये क्या कह रहा है, उसको हम अब समझाने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। दो कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल होना चाहिए आपको कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम के लिए टू कमोडिटी केस में। पहला क्या है, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। रेशियो यहाँ निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में, ये दोनों कमोडिटीज़ का जो है, दोनों गुड्स का जो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि MUX/PX इक्वल टू MUY/PY इक्वल टू MUM। यहाँ पे MUM का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप जो है देखिए, अब इसको हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। ना अब देखिए, वो जो हम लोग ये जो फार्मूला हम लाए हैं यहाँ पे कि MUX/PX इक्वल टू MUY/PY इक्वल टू MUM, वो कैसे आया उसको देखिए। हम लोग को मालूम है कि जब वन केस कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम में जो है आपको कब आता था, इक्विलिब्रियम में जो है कंज्यूमर कब आता था, जब MUX/MU इक्वल टू PX होता था। इस केस में होता था, इस केस में आता था आपको इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर। तो हम लोग देखे थे कि वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब आता था, जब हम बताए थे कि व्हेन MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, ठीक है, ये बताए थे कि MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, ये डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी होता था आपको यूटिल्स के टर्म्स में डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसको डिवाइड कर देते थे, तो ये चेंज हो जाता था इक्वल टू प्राइस ऑफ X। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो MUM का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रुपीज़, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो है मान लो 10 यूटिल्स है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है वो 2 है। तो MUX कितना हो गया, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसी चीज़ को MUX इन टर्म्स ऑफ मनी को हम लोग इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये जो है पहला जो हम लोग लॉ पढ़े थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, वहीं से लिया गया है। अब ये जो है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PX कुछ नहीं है, तो PX के नीचे 1 है, तो यानी कि ये नीचे इधर आ सकता है, ठीक है। और ये जो है MUM जो है इधर चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो PX जब यहाँ पे आ गया, PX जब आपको यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, तो क्या हो गया MUX/PX, और MUM जो है यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो क्या हो गया MUM
तो इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला में क्या देखें हम लोग कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसको इक्वेशन 1 दे दी, इसको याद रखना। नेक्स्ट, अब मान लीजिए y, दूसरा कम्युनिटी y है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम में कब आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ y। ठीक है, यानी कि यदि कोई कंज्यूमर जो है एक कमोडिटी y खरीद रहा है तो वो कब आएगा इक्विलिब्रियम में, वो तब आएगा जब एम यू वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ y होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ y होगा, तो एम यू वाई इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ y। ऐसा जब होगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग इसी को जो है हम लोग इसी को इस फॉर्म में लिखे हैं, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ y। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरह से लिख सकते हैं, पी वाई को यहाँ पे ले आएंगे और एम यू एम को यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आप इस दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या देखें, इससे पहले वाला इक्वेशन में क्या था, इससे पहले वाला इक्वेशन में था एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, ये है। दूसरा में क्या होगा, x की जगह पे y हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहा, बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है, केवल x की जगह पे y हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन आप देखिए, अब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे। ना इन केस ऑफ टू कोमोडिटीज, ये आपको इंपॉर्टेंट, यही केवल आपको याद रखना है, वो सब आपको याद नहीं रखना है, वो जस्ट समझाने के लिए आपको हम जो है यहाँ दिखाए थे। तो इन केस ऑफ टू कोमोडिटीज, ये जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें क्या दिया हुआ था कि एम यू एक्स बाई पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। ठीक है, तो इन केस ऑफ टू कोमोडिटीज एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हम लोग ये देखे थे कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या देखे थे, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्वल टू एम यू वन। तो एम यू वन दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था, इसका मतलब ये और ये दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों का इक्वल ये है। तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग गेट किए, जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन किए तो हम लोग को क्या पता चला कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एम। और यही कंडीशन है आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कोमोडिटीज केसेस। रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू द प्राइस ऑफ वाई। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे। यदि एम यू एम आपको कॉमन है यहाँ पे तो इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, एम यू एम को आप यहाँ पे ले आएंगे और प्राइस को यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ दो टाइप का प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स है और प्राइस ऑफ वाई है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे पी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे पी वाई लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल यदि हो जाएगा तो क्या होगा, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई हो जाएगा। और चूंकि ये कांस्टेंट है इसी के चलते जो है यहाँ पे आप इसको चेंज यहाँ पे आप नहीं कर सकते, इसका वैल्यूज को चेंज आप नहीं करेंगे। यदि 1 है तो फिर 1 है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कि टू कमोडिटीज केसेस में क्या होगा, क्या कंडीशन है, एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एम। कैसे निकला ये आपको हम बता दिए। ठीक है, आज इससे आगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे इससे आगे और आपको ग्राफ टेबल के द्वारा जो इसको हम समझाएंगे। थैंक यू।